गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटर्मिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन 3NO gives N2O रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO रेज टू पावर 2। सो क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पावर होती है रेट लॉ इक्वेशन में वो होती है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इसके रेट कांस्टेंट की डायमेंशन के लिए हमने रेट इक्वेशन लिखी, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2। तो रेट की यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर। तो K की यूनिट्स हो जाएंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर रेज टू पावर 2। सो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो K की यूनिट्स आएंगी मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n, यानी 1 माइनस 2, दिस इज -1, तो मोल -1 liter plus 1 and second inverse. Mole minus 1, liter 1, second inverse. These are the units of rate constant. फिर second reaction है H2 plus 3I negatives plus 2H positive gives 2H2O is plus I3 negative. इसके लिए rate equation दिए, rate is equal to K into H2O2 into I negative. अब ऑर्डर हो जाएगा, दोनों कंसंट्रेशन की पावर्स को प्लस कर दिया, 1 + 1 2, तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसकी भी डायमेंशंस यही वाली आ जाएंगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज CH3CHO gives CH4 plus CO and rate equation is rate is equal to K into CH3CHO the whole raised to power 3/2. So order is 3/2. तो यूनिट्स आ जाएंगी मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 minus 3/2. So 1 minus 1.5 means minus 0.5 or minus half. So mole minus half, liter raised to power plus half and second inverse. ये हो जाएंगी यूनिट्स। Then next is C2H5Cl. It gives C2H4 plus HCl. And rate equation is rate is equal to K into C2H5Cl. So क्योंकि पावर 1 है, रेज टू पावर 1 है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 और यूनिट्स हो जाएंगी मोल per liter raised to power 1 minus n, 1 minus 1, which is 0. So mole 0, liter 0, second inverse. Units will be second inverse. For the reaction 2A plus B gives A to B, the rate is equal to K into A raised to power 1 into B raised to power 2. With K is equal to 2.0 into 10 raised to power minus 1, mole raised to power minus 2, liter raised to power 2 and second inverse. Calculate the initial rate of reaction when A is equal to 0.1 mole per liter and B is 0.2 mole per liter. तो जैसा कि हमें पता है हमारे पास रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A raised to power 1 into B raised to power 2. So putting the values of the rate constant and concentrations of A and B, we get rate is equal to K is 2 into 10 raised to power minus 6 into concentration of A is 0.1 into concentration of B is 0.2 the whole square. तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 8 into 10 raised to power minus 9 mole per liter per second. And second part is calculate rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter.
तो इस रिएक्शन में अगर A 0.06 मोल रह गया है तो कितना रिएक्ट कर गया है, 0.1 से 0.06 माइनस कर दिया, इतना रह गया है, तो इतना रिएक्ट किया है 0.04। अगर A 0.04 रिएक्ट किया है तो इक्वेशन के हिसाब से B उसका हाफ रिएक्ट करेगा, दैट हाफ ऑफ 0.04 इज 0.2। अब 0.02 पहले था, B के मोल्स थे पहले 0.2 मोल्स, उसमें से 0.02 जो है रिएक्ट कर गए हैं, तो कंसंट्रेशन रह जाएगी 0.2 माइनस 0.02 विच इज़ 0.18। A की कंसंट्रेशन है 0.06 और B की 0.18। अब रेट इक्वेशन में ये वैल्यूज डालेंगे, रेट इज इक्वल टू K 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू B 0.06 इंटू A 0.06 इंटू B स्क्वेयर 0.18 का स्क्वेयर, और इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 3.89 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। Then next question is, the decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of nitrogen and hydrogen if K is 2.5 into 10⁻⁻4 mole per liter per second? तो reaction है 2 ammonia in presence of platinum gives nitrogen and 3 hydrogen. And because it's a zero order reaction, the rate equation will be rate is equal to K into concentration of ammonia raised to power 0. अब because anything raised to power 0 is 1, तो rate is equal to K बन जाता है। और अगर हम in terms of reactant and products rate को represent करते हैं तो हमारे पास है in terms of ammonia change in concentration of ammonia upon 2 into change in time, और ये नेगेटिव में होगा, जबकि इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ये होगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद चेंज इन टाइम, और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ये होगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 एंड चेंज इन टाइम। अब क्यों K की वैल्यू तो हमें पता है, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T K के बराबर यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, जबकि रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में आएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, तो 3 जो है वो K के साथ चला गया, 3 इंटू K, सो डेल्टा change in concentration of hydrogen to change in upon change in time, this is rate of production of hydrogen will be 3 into K। तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। Decomposition of dimethyl ether leads to the formation of methane and carbon monoxide, and the reaction rate is given by rate is equal to K into concentration of dimethyl ether raised to power 3/2. So the rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel, so rate can be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether raised to power CH3O CH3 raised to power 3/2. Pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and rate constant? तो rate की units तो हो जाएंगे bar per minute, change in pressure in bar per minute, और rate constant के क्योंकि हमारे पास है rate is equal to K into pressure raised to power 3/2, pressure bar में है तो rate constant की unit हो जाएगी bar raised to power 1 minus n, that is 1 minus 3/2 which is 0.5 or half, so units आ जाएंगी bar raised to power 1 minus 1/2 and minute raised to power -1. Next is a reaction is second order with respect to a reactant.
How is the rate of reaction affected if concentration of reactant is number 1 doubled? तो अगर reactant R is changing into products, then rate will be K into concentration of R raised to power 2, क्योंकि ये second order है. तो अगर initially R x है तो जब हम उसको डबल कर देते तो R बन जाएगा 2x. तो इनिशियल रेट होगा K इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन डबल करने पे R x की जगह 2x हो गया, तो सेकेंड रेट हो जाएगा K इंटू 2x का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 4x का स्क्वायर. तो रेट 2 अपॉन रेट 1 हो जाएगा K इंटू 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन K इंटू रेट 1 इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर. डिवाइड करने पर रेट 2 अपॉन रेट 1 आ जाएगा, ये कट गया 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कट गया 4, तो रेट 2 इज़ 4 टाइम्स रेट 1. इसी तरह अगर हमने सेकेंड केस में इसकी कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की हाफ कर दी, तो अगर पहले x है तो रेट 3 में x/2 हो गई कंसनट्रेशन, रेट 3 हो जाएगा K इंटू x/2 का स्क्वायर विच इज़ x/4. तो रेट 3 अपॉन रेट 1 इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी रेट 3 is equal to 1 by rate 3 upon rate 1 is equal to 1 by 4 और rate 3 is equal to 1/4 of the first rate. तो 1/4 रह जाएगा अगर concentration half हो गई. In a pseudo first order reaction in water, the following results were obtained. Calculate the average rate of reaction between time interval 30 to 60 seconds. Average rate क्या हो जाएगा? Change in concentration of reactant minus change in concentration of reactant upon change in time. इस पे 0.31 है, 60 seconds पे 0.17 है, तो change in concentration हो जाएगी 0.17 minus 0.31 और change in time हो जाएगा 60 minus 30. तो this comes out to be plus 0.14 upon 30. सॉल्व करने पे आ रहा है 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B. राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. सो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगी -d ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू A into B raised to power 2. ये हो गई differential equation. How is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times? तो first rate तो हमारा A into B raised to power 2 है, लेकिन second में हमने B को 3 times increase कर दिया है, तो B की जगह 3B हो गया. तो rate 2 will be K into A उतना ही रहा है into 3B का स्क्वायर, ये हो गया 9B स्क्वायर. तो सेकेंड रेट है K 9 इंटू K इंटू A इंटू बी स्क्वायर. तो रेट 2 अपॉन रेट 1 हो जाएगा 9 इंटू K इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन K इंटू ए बी स्क्वायर, वो कट गया, तो रेट 2 इज 9 टाइम्स रेट 1. देन हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ A and B are doubled. तो इनिशियल रेट था हमारा A B स्क्वायर, रेट इज इक्वल टू K इंटू A B स्क्वायर. अब इसको भी डबल कर दिया तो ये आ गया 2A, और B को डबल कर दिया, ये आ गया 2B का होल स्क्वायर. तो ये 2 बाहर ले लिया और 2 का स्क्वायर 4 भी बाहर ले लिया, तो 8 टाइम्स K इंटू A इंटू B स्क्वायर आ गया. सो थर्ड रेट इज 8 टाइम्स फर्स्ट रेट. For a reaction between A and B, the initial rate of reaction R0 was measured for different initial concentrations of A and B as given below. When A is 0.20, B is 0.30, rate is 5.07 into 10⁻⁻5. And when A is 0.20, B is 0.10, R is 5.07 into 10⁻⁻5. तो अब क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, हम मान लेते हैं लेट इट बी विद रिस्पेक्ट टू ए लेट इट बी पी एंड विद रिस्पेक्ट टू बी लेट इट बी क्यू.
सो रेट लॉ इक्वेशन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर पी इंटू बी रेज टू पावर क्यू. अब फर्स्ट केस में रेट 1 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के इंटू 0.20 रेज टू पावर पी इंटू 0.30 रेज टू पावर क्यू आ जाएगा. और इसी तरह सेकेंड केस में रेट 2 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0.20 रेज टू पावर पी इंटू 0.10 रेज टू पावर क्यू आ गया. अब डिवाइडिंग रेट 1 बाई रेट 2 हमारे पास आ जाता है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू k इंटू 0.20 रेज टू पावर p इंटू 0.30 रेज टू पावर q अपॉन k इंटू 0.20 रेज टू पावर p इंटू 0.10 रेज टू पावर q. ये कैंसिल आउट हो गया. 0.30 अपॉन 0.10 आ गया 3, तो 3 रेज टू पावर q इज इक्वल टू 1. ये भी कैंसिल आउट हो रहा है. 3 raised to power q is equal to 1. Anything raised to power q will be 1 only if q is 0. So that means q is 0. 3 raised. Rate law equation देखेंगे. Rate 3 is equal to, इसमें a 0.40 है और b 0.05 है और रेट इतना आ रहा है. अब जब रेट 3 को रेट 2 से डिवाइड करते हैं तो रेट 3 क्या है 1.43 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ a 0.40 रेज टू पावर p इंटू 0.05 रेज टू पावर q. 0.40 रेज टू पावर p इंटू 0.05 रेज टू पावर q. और सेकेंड केस में 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू k इंटू 0.20 रेज टू पावर p इंटू 0.10 रेज टू पावर q. अब डिवाइड कर लेंगे रेट 3 अपॉन रेट 2, तो ये आ गया 1.43 अपॉन 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू k इंटू 0.40 अपॉन 0.20 रेज टू पावर p इंटू 0.05 अपॉन 0.10 रेज टू पावर q. लेकिन ये वाला क्योंकि q यहाँ 0 है तो 0 की वैल्यू डाली तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1. हमारे पास रह जाता है 2 रेज टू पावर p इज इक्वल टू दिस मच. तो ये डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है 2.82. तो 2.82 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर p. दोनों तरफ लॉग्स ले लेते हैं तो log 2.82 इज इक्वल टू p log 2. तो p क्या आ जाएगा log 2.82 अपॉन log 2. तो log 2.82 आ रहा है 0.4502 और log 2 आ रहा है 0.3010. तो p कितना आ जाएगा डिवाइड करके 0.4502 अपॉन 0.3010 आंसर आया 1.5. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a आ गया 1.5. The following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction 2a plus b gives c plus d. So there are 4 experiments. This is concentration of A and B, and this is the initial rate of formation of D. Now determine the rate law and the rate constant for the reaction. तो अब रेट लॉ इक्वेशन लिखने के लिए वी हैव टू नो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ए वो p है और विद रिस्पेक्ट टू b वो q है, तो रेट लॉ इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू पावर p इंटू b रेज टू पावर q. अब इस डाटा में 2 रीडिंग्स जहाँ a सेम है लेकिन b डिफरेंट है, उन इक्वेशंस को ले लेते हैं और रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से ये थर्ड रेट 3 जो है विच इज़ 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इसको ऊपर रखेंगे. सो रेट 3 दैट इज़ 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू k इंटू a है 0.3 रेज टू पावर p इंटू b है 0.4 रेज टू पावर q. और सेकेंड
एक्सपेरिमेंट में रेट है 7.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू k इंटू 0.3 p इंटू 0.2 अब रेट 3 डिवाइडेड बाय रेट 2 करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें आंसर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर और विद रिस्पेक्ट टू b मिल जाएगा. So let's do that. Rate 3 divided by rate 2 will be k into 0.3 p into 0.4 q upon k into 0.3 p into 0.2 q. ये cancel out हो गया और 2.88 divided by 0.072 आंसर आ गया 4 और ये कैंसिल आउट होके 2 आ रहा है तो 2⁻q इज इक्वल टू 4 लेकिन 4 होता है 2⁻2 तो दैट मीन्स q इज इक्वल टू 2. अब नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर निकालने के लिए हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं. रेट इज इक्वल टू a यानी 0.1 p इंटू 0.1 q. This is rate 1. Then rate 2 is 7.2 into 10⁻² is equal to k into 0.3 into 0.2 q. Dividing rate 2 by rate 1 हमारे पास ये रेशियो आया 12 और ये k और k कैंसिल आउट हो गया. 0.3 upon 0.1 हो गया 3⁻p into 2.2 upon 0.1 हो गया 2 q. अब क्योंकि वी नो दैट q इज 2 तो ये आ गया 2⁻2. 12 इज इक्वल टू 3⁻p इंटू 2⁻2. दिस इज 4 को इधर ले गए. 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 तो 3⁻p इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स 3⁻1 इज 3 सो p इज 1. अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a हो गया 1 और विद रिस्पेक्ट टू p हो गया 2 तो रेट लॉ इक्वेशन हो गई rate is equal to k into a⁻1 into b⁻2. अब रेट लॉ इक्वेशन हमने लिख ली है. अब निकालना है हमें कांस्टेंट. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक्सप्रेशन थी रेट इज इक्वल टू k इंटू a is 0.1 b is 0.1 so a⁻1 0.1 into 0.1 और k हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय a⁻1 एंड b⁻2. रेट है 6 into 10⁻³ इट्स गिवन हियर एंड a⁻1 0.1 एंड b⁻2 0.1. सो दिस इज 0.001 और 10⁻³ ये और ये कैंसिल हो गया. रेट कांस्टेंट आ गया 6 liter square mole⁻² second inverse. The reaction between A and B is a first order with respect to A and zero order with respect to B. So fill in the blanks. तो हमारे पास पहले rate is equal to K into first order था with respect to a⁻1 into b⁻0. ये तो 1 हो गया तो हमारे पास आ गया रेट इज इक्वल टू k इंटू a. अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें रेट दिया हुआ है a और b दिया हुआ है तो हम k निकाल लेंगे. सो रेट इज इक्वल टू k इंटू a⁻1 इंटू b⁻0 मीन्स 0.1 इंटू b⁻0 इज 1. सो k आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.1 तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻1. तो अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास a नहीं है b है और k रेट है. तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास रेट इज इक्वल टू k इंटू a नहीं है तो a⁻1 इंटू b दिया है 0.2 तो ये तो 1 हो गया तो a विल बी 4 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻1. सॉल्व करके a की कंसंट्रेशन आ गई 2 इंटू 10⁻1 या 0.2 मोलर.
थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए दिया है, बी दिया है, लेकिन रेट नहीं दिया है. सो अगेन रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, रेज टू पावर 0 है यहाँ, तो रेट आ जाएगा के इंटू 0.4 और ये तो 1 ही है, और सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁻². एक्सपेरिमेंट में ए नहीं है, बी और रेट है, तो सो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू रेट अपॉन के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 0, वो 1 आ गया. के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1 है, डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर. दिस इज द concentration. So T half will be 0.693 upon K. K है 200, डिवाइड करके आंसर आया 0.003465 सेकेंड्स. 2 मिनट्स है तो 0.693 upon 2, ये आंसर आ गया 0.3465 मिनट्स. और T हाफ जब 4 years है तो डिवाइड करने पे आ गया 0.17325 years. दिस इज हाफ लाइफ. The half-life for radioactive decay of C12 is 5730 years. Archaeological artifact containing wood has had only 80% of C14 found in living tree. Estimate the age of the sample. T half से हमें K पता लग जाएगा. K is equal to 0.693 upon T half, which is 5730. तो डिवाइड करके 693.5730. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता करना है एज, तो लेट द एज बी टी ईयर्स. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, क्योंकि 80% है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगी, 100 अपॉन 80. नाउ क्योंकि के की वैल्यू 0.693 अपॉन 5730 है, तो 5730 ऊपर आ गया. अब इसमें 100 अपॉन 80, 0 कैंसिल, 10 अपॉन 8 1.25 आ रहा है. 1.25 का लॉग आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक होगी 0 और 12 को 5 में देखा तो 0.0969. सॉल्व करने पर एज आ गई 1845.2 ईयर्स. दिस इज योर आंसर. तो एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द decomposition of N2O5 in the gas phase at 318 Kelvin are given below. तो यहाँ टाइम इन सेकेंड्स बताया है और यहाँ कंसंट्रेशन 1.63 into 10⁻⁻2 है. तो प्लॉट करना है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट T. तो T वेरी करता है 0 से लेकर 3200 तक. तो हमने प्लॉट किया 0 से, फिर 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 32. अब 0 टाइम पे कंसंट्रेशन 1.63 है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम 0.35 है. तो 0.3 से 0.2 का डिफरेंस देते हुए हमने 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ले लिया. सो 0 पे 1.63, तो 0 टाइम पे 1.6, इसके बीच में एग्जैक्ट 6, उससे थोड़ा ऊपर 3, ये पॉइंट हो गया फॉर 0. देन 400 सेकेंड्स पे वैल्यू कितनी आ रही है 1.36. सो 1.3 और 1.4 के बीच में ये 36 आ गया, ये सेकेंड पॉइंट. इस तरह से सभी पॉइंट्स को मार्क करके हमारे पास ये ग्राफ आया. ये था फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना था. सेकेंड पार्ट है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन. तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1.63 है, इसका हाफ हो जाएगा 0.825. तो हम यहाँ से देखेंगे 0.8, ये 7 है, 9 है, 825. यहाँ से एक लाइन सीधी लेके जाते हैं, जहाँ ग्राफ में मीट करती है उसको नीचे लेके आते हैं और वहाँ से ये आंसर निकाल लेते हैं हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ विल बी ये अबाउट 1450 सेकेंड्स आ रहा है. देन थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ N2O5 एंड T. सो लॉग निकालने के लिए अब T
जब 0 है, t 0 सेकेंड्स है, उस टाइम N2O5 की कंसंट्रेशन है 1.63 इंटू 10⁻⁻²। ये जो टेबल है उसके लेफ्ट में दिया हुआ है। तो दैट मीन्स हमें 1.63 इंटू 10⁻² का लॉग निकालना है। तो लॉग निकालने के लिए 10⁻² का लॉग हो गया -2 और 1.63 में जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो जितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है उसमें से 1 माइनस कर देंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो 1 - 1 0, कैरेक्टरिस्टिक होगी 0। और 16 को हम 3 में देखेंगे तो ये 16 को हमने 3 में देखा 2122, तो ये आ गई हमारी 2122। लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है जबकि ये नेगेटिव है। तो पूरा ही आंसर नेगेटिव में करने के लिए हम -2 में से एक -1 ले लेते हैं और उसमें से ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस करके नेगेटिव में आंसर निकालते हैं। तो 1.0000 माइनस 2.2122, 10 में से 2 8, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8 और 9 में से 2 7। ये नेगेटिव हो गया और एक नेगेटिव यहाँ बचा था 1, तो पूरी नेगेटिव वैल्यू 1.7878 है। राउंड अप करके 1.79 कह सकते हैं इसको, -1.79। तो 1.63 का इंटू 10⁻² का लॉग है -1.79। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो थी विच इज़ 1.36 एट 400 सेकेंड्स, 1.36 इंटू 10⁻² का इसी तरीके से हम लॉग ले लेंगे। 10⁻² का लॉग हो गया -2 और इसी तरीके से ये 13 को 6 में देखकर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली विच कम्स आउट टू बी 1335। फिर से हमने उसमें से माइनस कर लिया और हमारी वैल्यू ये -1.87 आ गई। इस तरीके से सभी वैल्यूज़ की हमने जो है लॉग की वैल्यूज़ निकाल ली हैं और फिर टाइम 0 पे जो है जिस टाइम 0 था उस टाइम वैल्यू आ रही थी -1.79। तो 1.7 से शुरू करके ये 1.8, 1.9 ऐसे करके 1.79 पे फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह से 400 सेकेंड्स पे हमारी इसकी वैल्यू आ रही है 7। तो 1.87 की वैल्यू हमने निकाली, 1.87। इसी तरह से सभी पॉइंट्स को इस तरह से प्लॉट किया एंड वी गेट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ log of concentration of N2O5 and T. The next question is what is the rate law? तो सभी केसेस में हमारे पास नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेट लॉ। रेट लॉ निकालने के लिए 400 सेकेंड्स पे हमारी कंसंट्रेशन है 1.36 इंटू 10⁻², जबकि 0 पे थी 1.63 इंटू 10⁻²। तो रेट क्या होता है, बिकॉज हमारे पास ग्राफ में है जो रिएक्शन है वो है 2N2O5 changes to 4NO2 plus O2, so minus change in concentration of N2O5 divided by 2 into delta T. तो concentration change N2O5 की है 1.63 minus 1.36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 400 माइनस 0। ये आ गया हमारा रेट। इस रेट को हमने एक्सप्रेशन में डाल के के की वैल्यू निकाल ली। तो के विल बी रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो जैसे रेट हमारा आ रहा था 3.38 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है 1.63, concentration is 1.36 इंटू 10⁻⁻2 और सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2.48 इंटू 10⁻⁻4। इस तरह सभी वैल्यूज़ में हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू सेम आ रही है, तो रिएक्शन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो क्योंकि हमें
रेट एक्सप्रेशन आई रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5 रेज टू पावर 1, तो कोई भी रेट में हमने कंसनट्रेशन N2O5 की डाल के के को निकाल लिया, विच कम्स आउट टू बी 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर -4. लेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम रेट कांस्टेंट, तो हमें पता है हाफ लाइफ पीरियड 0.693 अपॉन के होता है. के हमने निकाला 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर -4 या 0.000248. तो सॉल्व करके ये 1438 सेकेंड्स आ रहा है, जबकि हमने ग्राफ से 1450 इसकी वैल्यू निकाली थी. सो ऑलमोस्ट एग्रीइंग विद द ग्राफ वैल्यू. The rate constant of a first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास होता है k इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स या a नॉट अपॉन a. तो अगर इनिशियल कंसनट्रेशन a है तो प्रेजेंट कंसनट्रेशन 1/16 ऑफ a है, यानी a अपॉन 16. 2.303 अपॉन k is 60. So t is equal to 2.303 upon 60 into a upon log a upon 16. a और a कैंसिल हो गया, 16 ऊपर चला गया. log 16 is also 2 raised to power 4 और 4 log 2. log 2 होता है 0.3010. So 2.303 upon 60 into 4 into 0.3010. सॉल्व करके t की वैल्यू आ रही है 0.0462 seconds. एंड बाकी के 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.